class, okay, last class we had discussed much about solutions, and we had ended our class where we were discussing about concentration of solution. Concentration of solutions, of a solution. ठीक है? So पहला बात आता है, what does concentration actually mean? Concentration actually means the proportion of what solute and solvent solute and solvent. Okay, I will not say solute and solvent, rather I will say solute and solution. It is the proportion of solute and solution. मतलब solution में कितना solute present है, ठीक है ना? It is the proportion. If the proportion of solute is more, I call it a concentrated solution. If the proportion of concentration solute is less, I call it a dilute or a less concentrated. तो हमारे सिलेबस में हम सिर्फ मास concentration के बारे में पढ़ते हैं. So concentration by formula is given as mass of solute divided by mass of solution, not solvent, mass of solution, and this thing is multiplied by 100%. And when you say mass of solution, this is equal to mass of solute plus solvent. इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं. करने के बाद we will go to properties of solution, and we will also go to what you call properties of solution, and we will go to properties of difference, what is suspension and what is colloid, वो भी हमें पढ़ना है. ठीक है, समझ में आया ये चीज, राइट? सो बाकी सॉल्यूशन के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं. सॉल्यूशन हम क्या पढ़ते हैं? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. वी नीड इन दैट यू विल बी ऑलवेज सीइंग वन मीडियम ओनली. दो मीडियम्स, दो पार्ट्स हमें नहीं दिखते हैं. चलिए इसके ऊपर एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं, एक दो प्रॉब्लम्स, सो दैट वी गेट टू नो how and what type of questions come. ये फॉर्मूला तो लास्ट क्लास में भी किया था. चलो अनन्या डिक्टेट करो तो बेटा क्या है क्वेश्चन. Okay, I'll just write some given datas and let's see how. Very easy problems unless and until you do mathematical error. क्या है क्वेश्चन बेटा, ये पढ़िए. So the question is, there is a solution, okay, a solution, and it contains what? Okay, it contains 30 grams sugar. इसमें 30 ग्राम शुगर है. Okay. Okay, this is dissolved. This is dissolved in 370 grams of water. 370 grams of water. Very good. Go ahead. Okay, calculate the concentration. To find, हमें क्या find करना है? What is the concentration? Not so tough. ठीक है ना, हमें concentration निकालना है solution का. सबसे पहले your eyes should be fit on what is the solute and what is the solvent. Obviously 30 grams of sugar, ये less में है, so this is going to be my solute. और मेरा solvent क्या है? The solvent is water. This is my solvent. है ना, ये चीज समझ में आया? तो जो कम मात्रा में रहता है उसे हम कहते हैं सोल्यूट, जो मात्रा में ज्यादा रहता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट. तो ये विल राइट आवर फॉर्मूला. concentration is equal to mass concentration, percentage concentration is equal to mass of solute divided by mass of solution into 100%. चलिए इसको निकालने की कोशिश कीजिए. तो मास ऑफ सोल्यूट हमारा कितना है? 30, एंड मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी 30 plus 370 because 30 is solute and 370. So this is gram into 100%. So finally your answer is coming out as what? 100%. So this is 30 over 400, है ना, into 100%. So 0 0 1 0 0 1. So this is 4 7 is 28 to 24.5. 7.5% is your concentration.
ठीक है, 4 7 28 2 0 4 5 20। तो ऐसे ही प्रॉब्लम आता है, इससे ज्यादा टफ आपको आता है नहीं। ठीक है, ये चीज समझ में आया, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन लेके। ओके, आइए नाउ वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद हम थोड़े से कोलॉइड्स को पढ़ेंगे और सस्पेंशन को पढ़ेंगे और देखेंगे डिफरेंस कैसे करने के लिए। इज दिस ओवर? कैन आई गो अहेड नाउ? थैंक यू। सो नाउ वी सी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये आपको आते हैं क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। और पहला प्रॉपर्टी क्या है? द सॉल्यूशन इज ऑलवेज अ होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, इसके जो सॉल्यूशन होते हैं इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स, their size is approximately 1 nanometer. Nanometer means 10 to the power minus 9 meter, very small. ये जानना जरूरी है। देखो इसमें क्यों आपको ये अभी जो पढ़ रहे हो ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सॉल्यूशन के सोल्यूट पार्टिकल्स काफी छोटे होते हैं, इट्स अराउंड 1 नैनोमीटर, एंड सोल्यूट particles cannot be seen under microscope. You cannot see the solute particles under microscope. दिखाई नहीं देंगे, पर solute particles तो है। Number 4, they cannot be filtered using filter paper. ये समझ में आया आपको? जैसे आप चाय पत्ती होता है ना, उसे आप फिल्टर पेपर में पकड़ सकते हैं, इसको आप फिल्टर पेपर में भी नहीं पकड़ सकते। मीन सॉल्यूशन को जब आप पास कराएंगे ना, पूरा का पूरा पास हो जाएगा, फिल्टर पेपर में कोई रेसिड्यू नहीं रहेगा। मतलब आपके फिल्टर पेपर में नो रेसिड्यू, कोई रेसिड्यू नहीं मिलेगा, इसीलिए ये सॉल्यूशन है। और फिफ्थ वाला अभी आप जस्ट गल्प कीजिए, इसको हम थोड़ी देर में समझाएंगे आपको। फिफ्थ प्रॉपर्टी, दे डू नॉट स्कैटर लाइट। ये हम पढ़ेंगे जब हम कोलॉइड पढ़ेंगे, अभी आप जस्ट जान के रखिए, दे डू नॉट स्कैटर लाइट। So what are we studying? We are now in which branch? Matter, impure substances, mixtures. Mixtures can be homogeneous and heterogeneous. Homogeneous में solution और alloy था, हमने solution को खत्म किया, अब हम heterogeneous में जा रहे हैं। याद है आपको? Mixtures are of two types, homo and hetero. अभी हम hetero में जा रहे हैं। hetero में दो टाइप के mixtures हमें मिलते हैं, suspensions and colloids। ठीक है, तो ये हमारा properties of solution हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा करके इसी स्क्रीन में रखेंगे क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया और यहाँ पे रख लिया। ठीक है, आइए अब चलते हैं हमारे किस पार्ट में। वी आर इन हेटेरोजेनस mixtures, and in heterogeneous mixtures there are two categories. One is known as suspension and one is known as colloid। ठीक है, बचपन में सबको बुखार उखार हुआ होगा, जब आप बच्चे रहते हो ना, किसी के घर में अगर छोटा भाई वगैरह है, when you have a kid, then you are actually fed what? You are fed क्रोसिन देते हैं ना। तो जो पेडियाट्रिक मेडिसिन होता है ना, क्रोसिन, बच्चे को तो टैबलेट नहीं दे सकते हैं, पेडियाट्रिक क्रोसिन देखना, हमेशा दुकान में जाके पूछना, दैट इज सोल्ड एज क्रोसिन सस्पेंशन। कफ सिरप भी जो होता है ना, सस्पेंशन रहता है, और सस्पेंशन में हमेशा लिखा रहेगा दैट यू शेक द बॉटल वेल बिफोर यूज, क्योंकि अगर आप शेक नहीं करोगे उसका मेडिसिन नीचे रह जाएगा, क्योंकि मेडिसिन कड़वा होता है। तो बच्चे को पिलाने के लिए हम क्या करते हैं, शुगरी बेस में देते हैं, फ्लेवर्ड कंपोनेंट रहता है, नहीं तो वो सिर्फ कंपोनेंट पिएगा, उसकी माँ परेशान हो जाएगा,
उसका टेम्परेचर नहीं आ रहा है। तो आइए सबसे पहले सस्पेंशंस के बारे में पढ़ें। सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या है बेटा? नंबर वन, सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। Have you had the best way to explain your generation what is suspension? ये जो हम स्ट्रॉबेरी क्रश वगैरह खरीदते हैं ना, तो आप देखते हो उस लिक्विड के अंदर छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी के दाने आपको दिखाई देते हैं जो कि नीचे सेटल हो जाते हैं, फिर थोड़ा हिलाओ तो ऊपर आता है, ऐसे घूमते रहते हैं उसके अंदर। या फिर कुछ एलोवेरा फेस वॉश जैसे रहता है जिसमें आपको दाने दिखते रहते हैं अंदर में, चिया सीड्स की तरह। ये सब सब सस्पेंशन है। तो अच्छा, यहाँ पे सॉल्यूशन में हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं लिखा, दैट पॉइंट शुड हैव बीन समवेयर इन बिटवीन। हाँ, that point I had missed out. Solution is very stable. A solution is stable. Stable का मतलब समझ रहे हैं? अगर आपने टैंक का एक सॉल्यूशन बनाया, बना के आप 1 घंटा बाद भी आ जाओ तो आपको ऐसा नहीं आएगा कि that you know the solute particles have settled below. Then only it is the solution. A solution is known as a solution if it is very stable. आपने बनाया, बना के आप रख दीजिए, 2 घंटा बाद आके आप चेक कीजिए, उसमें कुछ सेटल नहीं होना चाहिए। सो वी कॉल इट एज स्टेबल। इज दैट क्लियर? टैंग इज एक्चुअली ए सॉल्यूशन। ठंडा कर दोगे तो बाहर आ जाएगा। गर्मी में टैंग इज एक्चुअली ए सॉल्यूशन। ऑरेंज स्क्वैश द बेस्ट एग्जांपल। जो ऑरेंज स्क्वैश आप किसान ऑरेंज स्क्वैश ऐड करते हो ना पानी में, दैट्स अ सॉल्यूशन। आपके गेस्ट बैठे हैं, आपने गेस्ट को पीने दिया, ऐसा थोड़ी है 15 मिनट बाद ऊपर पानी आ जाता है और नीचे ऑरेंज चला जाता है, नहीं जाता है। सो दैट्स अ सॉल्यूशन। ठीक है। Now, when you come to suspension, suspension is a homogeneous mixture, and we will go right in this order. इसके जो solute particles है वो तो हमें आंखों से ही दिखते हैं। Solute particles are greater than 100 नैनोमीटर। काफी बड़े बड़े solute particles होते हैं। जैसे मेडिसिन हो गया, क्रॉसिन सस्पेंशन। Solute particles are greater than 100 nanometers. 3 क्या लिखेंगे? Can be seen with naked eye. Naked eye, right? Then 4 we will write that in this the suspension is unstable. Suspension is unstable. Okay, as I keep on saying the example of Digene. Digene जैसे मेडिसिन है ना, खाने से पहले आप शेक करके खाते हो, उसको शेक नहीं करके आप खाओगे ना तो पूरा नीचे सेटल हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेकेट लाइन इज नेवर, यू विल नेवर सी इट एज अ सॉल्यूशन, वो नीचे गिरा हुआ रहेगा। कॉर्नफ्लावर का जो, इफ यू ऐड कॉर्नफ्लावर इन वाटर, इफ यू डोंट शेक इट, तो कॉर्नफ्लावर पानी में वो नीचे थप करके नीचे गिर जाएगा। दीज आर ऑल नोन एज सस्पेंशंस। सस्पेंशन को पकड़ना बहुत ही आसान है। सो सस्पेंशंस इज अनस्टेबल। ओके, देन नंबर 5 कैन बी फिल्टर्ड विद अ फिल्टर पेपर, कैन बी फिल्टर्ड यूजिंग फिल्टर पेपर। कोई सवाल ही नहीं। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, एज आई टेल यू, डू गल्प इट, वी विल एक्सप्लेन इट लेटर। दे स्कैटर लाइट। ये स्कैटर लाइट वाला पार्ट आगे समझाएंगे। सो डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस हियर? होमोजेनस मींस सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। Obviously, there is no big deal between them. Striking difference. Particle size is less than 1 nanometer. This means that your filter paper is not able to trap anything which is smaller than 1 nanometer. वो filter paper के पोर से पुरुक करके चला जाता है, इसलिए आप उसे पकड़ नहीं पाते हो। है तो ये भी मिक्सचर, मजा देखो, ये भी लेकिन मिक्सचर है, नॉट केमिकली कंबाइंड। इसको आप सेपरेट करोगे तो कैसे सेपरेट कर सकते हो? जैसे शुगर सोल्यूशन हो गया, सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, आप सिर्फ हीट कर सकते हो, इवेपोरेट कर सकते हो, वैसे ही सेपरेट है, लेकिन मिक्सचर, कंपाउंड नहीं पढ़ रहे हो आप इंप्योर सब्सटेंस पढ़ रहे हैं। इंप्योर में होमोजेनस, इंप्योर में हेट्रोजेनस। लेकिन ये कैसा है? सुर करके पास करेगा। सिंगल है होमोजेनस, देन स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। इसके पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से मैक्सिमम इज 1 नैनोमीटर। ये फिल्टर पेपर को धोखा देके निकल जाते हैं, इसमें कोई सवाल ही नहीं है, ऐसे ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये आपको नेकेड आई से दिखते हैं, माइक्रोस्कोप का कोई सवाल ही नहीं है। दे आर अनस्टेबल। ये दोनों चीज समझ में आया। अब मजा जो आएगा ना वो बीच का वाला, दैट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग वन। चले आगे बीच वाले का, और यही है इंटरेस्टिंग पार्ट। बीच वाले को हम कहते हैं कोलॉइड। सॉरी, द मिडिल वन इज नोन एज कोलॉइड।
COLLOID। सबसे पहले कुछ कोलॉइड्स की बात कर लेते हैं। ब्लड, इंक, ये सब कोलॉइड है। स्टार्च, ये सब कोलॉइड है। ब्लड में आपको दो सरफेस दिखता है, इंक में आपको दो सरफेस दिखता है, एक ही सरफेस, पर ये सॉल्यूशन नहीं है। अब जरा इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। अ कोलॉइड इज नंबर वन अ हेटेरोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर, लेकिन खासियत देखो, बट appears homogeneous, appears homogeneous, ठीक है। यहां एक बढ़िया एग्जांपल भी देंगे आपको। कोलॉइड इज हेटेरोजेनस, नेवर राइट कोलॉइड इज होमोजेनस, ये आपको धोखा दे रहा है, इट इज हेटेरोजेनस, ठीक है। सवाल आता है कि कोलॉइड इज स्टेबल, कोलॉइड्स आर स्टेबल, मतलब एक कोलॉइड को लेके अगर आप रख देंगे, अगर आप ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में रख दें, तो आप ब्लड में कोई भी चीज नीचे डिपॉजिट नहीं देखोगे, ये हर धोखा देगा आपको, ठीक है। नंबर 3, सोल्यूट पार्टिकल्स कैनॉट बी फिल्टर्ड यूजिंग फिल्टर पेपर। हाय फिल्टर पेपर से भी दिस इज गोना पास बाय। सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी फिल्टर्ड यूजिंग फिल्टर पेपर। नंबर 4, कैनॉट बी सीन विथ माइक्रोस्कोप। हाँ, आएंगे वहां पे। सोल्यूट पार्टिकल्स कैनॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। Then number 5 we write that the particle size is between 1 nanometer to 100 nanometer। वो क्या था, उसका मैक्सिमम था 1, वो 100 से ऊपर था, ये 1 और 100 के बीच में है, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा ह्यूमर भी होना चाहिए, ये पकड़ा कैसे जाएगा, ये फिल्टर पेपर से भी पास कर जाता है, ये माइक्रोस्कोप में भी दो होमोजेनस है। नाउ यू कैन गो इन एवरी टाइम, नाउ यू कैन आस्क मी, सर पकड़ा तो जाएगा, ये आपने लिखा ना 1 नैनोमीटर, टेल मी एज अ नॉर्मल पर्सन, इफ आई गिव यू 2 सैंपल्स एंड आई टेल मी व्हिच इज कोलॉइड एंड टेल मी व्हिच इज सॉल्यूशन, आप थोड़ी नैनोमीटर कितना मेजर कर पाओगे। नैनोमीटर, दिस इज समथिंग वेरी साइंटिफिक, यू कैन मेजर डेली। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप होमोजेनिटी चेक करोगे, दोनों पास। देन व्हाट विल यू डू, फिल्टर पेपर, दोनों पास। माइक्रोस्कोप, दोनों पास। रख दो 1 घंटे के लिए, दोनों स्टेबल। अब हम कैसे पकड़े, तो इसमें एक जोक है। आप बीटीएम का मीनिंग जानते हैं, बीटीएम क्या होता है? तुम लोग यार मजेदार चीजें नहीं जानते हो। बीटीएम का मतलब होता है बहन जी टर्न मॉड, बहन जी टर्न मॉड, ये सब हमारे कॉलेज जमाने में चलता था। बहन जी टर्न मॉड का मतलब है तो कोई बहन जी टाइप लेडी है, बहन जी समझते हो ना, लेकिन अभी बहन जी मॉडर्न बन गई है। मतलब मॉडर्न मतलब ड्रेसिंग में मॉडर्न, मेकअप में मॉडर्न, बातों में मॉडर्न, लाइफस्टाइल में मॉडर्न। आप बहन जी को पकड़ ही नहीं पा रहे हो कि वो बहन जी थी कभी। बहन जी मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ी सी देसी टाइप। बहन जी मॉड बन गई है, लेकिन आप जानते हो कि ये बहन जी है, ये मॉड है नहीं। आप कैसे पकड़ोगे? कहीं ना कहीं हमेशा कातिल एक सुराग छोड़ के जाता है, कुछ ना कुछ एक छोड़ेगा। तो जैसे बहन जी है ना, बहन जी किटी पार्टी ऑर्गेनाइज करती है तो कैसे बोलेंगे, आइए आइए मिसेस सक्सेना आइए बैठिए, हाँ मत बोलिए, या मैं भी एयरपोर्ट गई थी, हाँ वो किटी में ऐसा हो गया, फिर चाय आएगा प्लेट में, फिर ऐसे ट्रे करेगा, चाय लीजिए, ये लीजिए ना, स्नैक्स लीजिए, स्नैक्स। मतलब कहीं ना कहीं आपको बहन जी पकड़ा ही जाएगा। इसका भी एक स्नैक्स वाला होना चाहिए कि कहाँ। तभी आप बोलते हो कि दिस लेडी इज, वी यूज्ड टू से दिस लेडी इज बीटीएम, हमारे कॉलेज लैंग्वेज में बीटीएम मींस बहन जी बट टर्न मॉड। अभी एकदम रापचिक है, लेकिन एक टाइम पे बहन जी थी। तो इसका जो है, हाँ वो स्कैटर लाइट, इसमें हम समझाएंगे, बोला था ना, ये 6 है, इसको हम बोलेंगे ये स्कैटर्स लाइट। अब आप बोलोगे कि सर
Can this test be done by any normal person? Yes, this test can be done by any normal person, and a normal person can differentiate between a colloid and a solution only in this manner. देखो सस्पेंशन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, सस्पेंशन ऑलवेज गरीब्स, उसके पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि वो देखने से पकड़ा जाता है, प्रॉब्लम है कोलॉइड। अब व्हाट इज दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पहले थोड़ा समझते हैं। हैव यू गॉन टू अ मूवी थिएटर? In a movie theater, when the projector lights up and the theater is all dark, don't you see the entire beam falling on the screen? So what is that beam? There are a lot of dust particles in the air, and each of the dust particles are scattering that light. Light को कैसे कर रहे हैं scatter? Okay, let's take an example. Girls, you will understand very nicely. चुमकी जानते हो ना, सेक्विन जिसे बोलते हैं। बहुत सारा क्यों चुमकी में मुंह इतना घुमाने का नहीं। हम बॉयज भी जब अपने स्कूल में रहते थे, क्योंकि तुम लोग तो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हो, हमारे स्कूल में एक पीरियड होता था हैंडक्राफ्ट्स, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, हैंड वर्क, हैंड, उस पीरियड का नाम ही होता था हैंडक्राफ्ट। केवी में उसे SUPW बोलते थे, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क्स, जहां आप बनाते थे फ्लावर वास, पेंसिल होल्डर, वहां पे आप लेस का काम करोगे, चुमकी से डिजाइन करोगे। तो चुमकीज आर दोस शाइनी शाइनी सर्कल, स्मॉल स्मॉल सर्कल्स जिसको बोलते हैं, इसे चुमकी बोला जाता है, जिसे सेक्विन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऐसे जैसे चुमकी आप रख दोगे और आप लाइट फेंकोगे तो सारा चुमकी शाइन करना शुरू कर देता है ना। तो द चुमकी इज डूइंग व्हाट? चुमकी इतना बड़ा है कि वो लाइट को स्कैटर कर देता है। ग्लिटर्स देखे हो आप? ग्लिटर्स, जैसे हम प्रोजेक्ट वर्क में ग्लिटर्स यूज करते हैं, ज्यादा काम करते करते ब्लैक टी शर्ट पहन के ग्लिटर लगा के काम करो, फिर ऐसे ऐसे करोगे ना, अंधेरे रूम में भी जाओगे तो ग्लिटर करना शुरू हो रहा है। व्हाट इज दैट? That glitter particle, though very small, is able to scatter the light. Let me give you another example. जो आप योगा के वीडियोस देखते हो या फिर गॉड और ऑलमाइटी के, और ऊपर से एक आवाज ने उसे राह दिखाया, तो एक सुंदर सा मॉर्निंग लाइट के साथ एक those strands of rays that you see, right? How do you see those rays? Because there is a lot of mist in the air on a cold morning, and those mist act as particles who scatter the light, and you feel that the light is just coming in the forest through those. So this was actually done by a movie company when they used to do these horror के scenes वगैरह shoot करते थे. So this effect in movie world is known as, was first brought by a person in America named as Tyndall. So Tyndall के नाम पे ये effect गिरा, और इस effect को हम बोलते हैं Tyndall effect. Scattering of light का जो scientific name है उसे हम कहते हैं Tyndall effect. So you should ask, what is Tyndall effect? Tyndall effect is the effect due to which the beam of light is scattered by the particles through which it passes through. Those particles can be mist particles, which you see in forest, rays की तरह आते हैं ना भगवान की किरणें, या फिर dust particles in a movie theater. समझ में आया? The thing is that Tyndall effect means scattering of light. Scattering of light. Is this understood? Now, the light can scatter only when you have what? You have something called a particle. ये बड़ा important है, particle. जहां particle वहां light scatter होगा, जहां particle नहीं वहां light scatter नहीं होता है। अब बड़ी दोपहर में इतना बड़ा सूरज चमक रहा है, आपको अलग अलग रेस दिखाई देता है? अलग अलग रेस तो नहीं दिखाई देता है, बट अर्ली मॉर्निंग हमें अलग अलग रेस दिखाई देता है जंगल से जब हम गुजरते हैं, बिकॉज उसमें पार्टिकल है। क्या पार्टिकल है? मिस्ट या फिर डस्ट पार्टिकल्स इन अ प्रोजेक्टर रूम। अब इस रूम में थोड़ी आपको लाइट्स दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा है। So Tyndall effect means the scattering of light, and here we use an English phrase which we say that you renders the path of light as visible. मतलब आपको path of light दिखना शुरू हो जाता है whenever there are particles. So what is Tyndall effect? Tyndall effect is the phenomenon associated with scattering of light. The scattering of light happens when light rays pass through certain particles, and the size of the particle matters. It has to be a some size. उस साइज के ऊपर होने से ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? लाइट को स्कैटर करना शुरू कर देंगे, एंड इट रेंडर्स द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल। मतलब मुझे रोशनी की जो पूरी पाथ है वो दिखनी शुरू हो जाती है। अब इस चीज को अप्लाई करते हैं हमारे स्टोरी में। ओके, सो लेट्स टेक अ ग्लास ऑफ, ये आप घर पे कर सकते हो। ये हमने यहां पे लिया ग्लास, और इसमें हमने क्या लिया? बढ़िया से मिक्स किया हुआ शुगर या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया। ध्यान रहे एकदम मिक्स हो जाना चाहिए, एकदम मिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है?
ये आप एक्सपेरिमेंट घर पे ही कर सकते हो। अब आप क्या कीजिए, इसके बाद आप यहाँ पे एक टॉर्च लाइट ले आइए, ब्रिंग अ टॉर्च लाइट एंड यू इल्यूमिनेट दिस टॉर्च लाइट। जैसे ही आप टॉर्च लाइट को इल्यूमिनेट करोगे, आपको टॉर्च लाइट की किरणें कुछ इस प्रकार दिखेंगी। ओके, लेट्स, आपको टॉर्च लाइट की किरणें ऐसे जाएंगी, है ना, और फिर ऐसे दिखाई देगा। ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन स्कैटर नहीं करता है, मींस थ्रू द सॉल्यूशन यू वोंट सी एनी पाथ ऑफ लाइट। बात में समझ, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में पार्टिकल्स है ससुरे इतने छोटे हैं ना कि वो स्कैटर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पाथ ऑफ लाइट नहीं दिखेगा। हालांकि आपका मन क्या कहता है, आपका मन तो कुछ ऐसा कहता है कि सर एक्चुअली लाइट रेस तो ऐसे ही गुजरी होगी ना, ऐसे ही गुजरी होगी, पर आपको वो पाथ नहीं दिखता है। समझ में आया? दिस इज द केस ऑफ से शुगर सॉल्यूशन। माइंड द वर्ड सॉल्यूशन। हमने क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। ये सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर करेगा ही नहीं, लेकिन इसके जगह पे अब आपको किसको पकड़ना है? बीटीएम को पकड़ना है। अब बीटीएम पकड़ी जाएगी। देखो स्नैक्स वाला कांड हो जाएगा अभी। अब ये क्या है? अगर आपको रात को दूध पीने का शौक है, जैसे मिल्क, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड, तो आप इस ग्लास में मिल्क भर लीजिए और मिल्क भरने के बाद वापस से व्हाट यू डू, यू इल्यूमिनेट योर टॉर्च नाउ। जैसे ही आप मिल्क से टॉर्च को इल्यूमिनेट करोगे ना, मिल्क क्या है तो कोलॉइड, लेकिन सॉल्यूशन बन के हमें धोखा दे रहा है। एक ही जगह उसे पकड़ सकते हैं। जैसे ही लाइट जला दोगे, मिल्क पूरे लाइट को पाथ को अरे यार, पूरे लाइट के पाथ को दिखाना शुरू कर देगा। यू विल सी कंप्लीट, ये पोर्शन पूरा ग्लो करके चला जाए, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज क्या है? 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में। ये एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दो। ये फिल्टर पेपर में पास कर जाएंगे, समझ में आया? ये माइक्रोस्कोप में नहीं पकड़े जाएंगे, पर ये लाइट में 100% पकड़े जाएंगे। जैसे ही आप मिल्क के ग्लास से लाइट जलाओगे ना, पूरा मिल्क ग्लो करके उठेगा। आपको यकीन नहीं होता है तो अगर छोटे बच्चे हैं आपके घर पे, छोटे बच्चे, उनके हाथों को ऐसे दबा के यहाँ पे टॉर्च लाइट जला के देखो, पूरा रेड होके ग्लो करके उठता है, क्योंकि अंदर क्या है? ब्लड। तो ब्लड स्कैटर्स लाइट एंड इट विल रेंडर द पाथ ऑफ लाइट विजिबल। इसी से ही आप पकड़ पाओगे कि ये बीटीएम है, स्नैक्स, वरना और कोई चीज में नहीं। हाँ बोलिए। 1 से 100, ऐसा है कि 100 के बीच में कुछ तो होंगे। इसमें कितने सैकड़ों पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जो 80-90 के आसपास है। They are sufficient to scatter light. वो लाइट में छुप नहीं सकते हैं, समझ में आ रहा है ना? वो फिल्टर पेपर का पोर्स इससे बड़ा है, फिल्टर पेपर से पास कर गया, लेकिन लाइट से नहीं छुप सकते हैं। सो दिस इज द ओनली, सी, कैचिंग अ सस्पेंशन इज नो ग्रेट थिंग। सस्पेंशन तो ऐसे देखते ही पकड़ा जा रहा है, इतना बड़ा हाथी जा रहा है आपके आगे से, पकड़ लो उसको। कोलॉइड्स विल ऑलवेज स्कैटर लाइट। आप इंक ले लीजिए आज घर पे जाके, इंक से लाइट पास कीजिए, आपको लाइट का डायरेक्शन दिखेगा। नाउ लेट मी कम बैक। हैव यू सीन चिल्ड्रन, हम लोग जब छोटे थे ना, तो जब हम छोटे थे, अभी भी मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, पर उतना यूज नहीं है। ये है दैट टिपिकल बल्ब्स व्हिच यू आर बाइंग इन द मार्केट। हमारे टाइम पे एक ग्लास बल्ब मिलता था, जो अभी भी इलेक्ट्रिशियंस लेके आते हैं, टेस्ट लैम्प की तरह यूज करते हैं, एंटायर ग्लास। तो तब तो एलईडी बल्ब्स नहीं थे, तो हम लोग क्या कहते थे? ग्लास वाला बल्ब खरीदो। एक और बल्ब आता था आजकल जैसे पूरा का पूरा व्हाइट, इस बल्ब का मार्केट में नाम ही था मिल्की। कहते थे 100 वॉट बल्ब दीजिए, कौन सा ग्लास में दीजिए? मिल्की वाला दीजिए। मिल्की मींस व्हाइट रहेगा, क्यों? वही वाला कोलॉइड वाला फंडा है, it scatters the light. So have we understood what is a colloid? A colloid is a heterogeneous mixture, appears homogeneous, and a colloid scatters light, or rather colloids will render the path of light visible. It will make the path of light visible, and this phenomenon is known as Tyndall effect. Tyndall effect is the only test with which you can differentiate between colloid and solution. अब बात आता है, will suspension scatter? अरे ये scatter करेगा तो suspension तो और आराम से scatter करेगा।
आप क्रॉसिन ले ले, या फिर आप नया क्रश स्ट्रॉबेरी वगैरह लाते हो ना घर में, एक टॉर्च लाइट जला के देखो, पूरा इल्यूमिनेट होके जाएगा। नॉट द टॉप नॉट द बॉटम, जैसे रेस जा रहा है ना उतना पोर्शन को इल्यूमिनेट करके चला जाएगा। ये चीज आप ब्लड तो आपके पास इतना है नहीं। अब बात आती है तो क्या हम इनके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर पाते? कर पाते हैं। एक और प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं, हायर क्लासेस में आप बायो में पढ़ोगे, सेंट्रीफ्यूजिंग। Now do you know when your blood and your plasma and blood particles are separated, test tube में घुसाएगा, and the test tubes are actually put in one small barrel जैसे चीज में, गन के बैरल जैसे, और वो मशीन को अंदर घुमा के हाई स्पीड में घुमाना शुरू कर देगा, तो आपके ब्लड से ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा सेपरेट आउट हो जाएगा। कौन सा? नहीं, वो ऑयल है, दैट्स कंप्लीटली अ डिफरेंट थिंग। दैट्स अ ऑर्गेनिक मिक्सचर ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्लीज डोंट कंफ्यूज इट, दैट्स अ मिक्सचर ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोलॉइड में आपको और बताते हैं, जैसे सॉल्स होते हैं ना, जैसे आपके एरोसॉल, ये आफ्टर शेव की जो शेविंग क्रीम जैसा रहता है ना, प्रेस करने से जो इतना सा फ्रॉथ आ जाता है, दैट इज ऑल्सो ए कोलॉइड। Your book does not have any more to discuss in this chapter apart from this, but there can be a question which is very common: distinguish between solutions and colloids. So how do you write? Solution is a homogeneous mixture, colloid is a heterogeneous mixture but appears homogeneous. Solutions are stable, colloids are also stable. तो ये differentiating point नहीं है, लेकिन हम लिखते हैं, list out the points. Particles are in the order of up to 1 nanometer, particles in the order of 1 to 100 nanometer. Particles pass through filter paper, particles pass through filter paper. Particles cannot be seen through naked eye and microscope, particles cannot be seen through naked eye and microscope. Then here, particles do not scatter light, scatters light. हाँ, कोलो, इसीलिए तो उसको कोलोइड, अगर नहीं किया तो फिर सॉल्यूशन में पास हो जाएगा। 3 नैनोमीटर, अभी देखो सवाल वैसा नहीं है, आप एक सैंपल लेके आए हो जिसमें 3 नैनोमीटर्स है, हम थोड़ी मेजर कर सकते 3 है क्या, हम तो लाइट जलाएंगे, अगर लाइट का पाथ नहीं दिखा सॉल्यूशन है, लाइट का पाथ दिख गया तो कोलॉइड है। जैसे अगर मिल्क में हॉर्लिक्स, हाँ, मिल्क में हॉर्लिक्स डाल के आप करके देखो ना, बहुत अच्छा है। यही तो दिमाग चाहिए मुझे क्लास में। मिल्क में एक बार लाइट जला के देखो, फिर मिल्क में हॉर्लिक्स तो फिर भी ग्रैन्युलर है, थोड़ा और पॉलिश कुछ, जैसे हॉर्लिक्स में तो पकड़े जाओगे, जैसे नहीं, दूध में टैंग मत मिलाओ, एसिडिटी होके मर जाओगे, दूध में टैंग नहीं मिलाते। जैसे आपका कोई एल्डरली लोग है तो एंश्योर, पीडियाश्योर टाइप चीजें रहती है ना, या फिर कॉम्प्लान बहुत बारीक होता है, वो डाल के देखो 100%। मैं कर चुका हूँ ये सब। हाँ, थिएटर में तो डस्ट पार्टिकल्स, वही तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना। हटा, इससे अच्छे थिएटर्स में वैक्यूम करते हैं, बिकॉज इफ जब आपका बहुत देर से थिएटर क्लीन नहीं होगा तो आपको बीम दिखेगा, एक्चुअली आपको बीम दिखना नहीं चाहिए। जैसे मेरे घर में भी प्रोजेक्टर है, हमारे घर में उतना फुटफॉल नहीं है ना, तो बीम तो हमारे इस घर पे भी दिखेगा आपको, पर उतना नहीं दिखेगा जितना थिएटर्स में दिखता है, क्योंकि थिएटर्स में फुटप्रिंट ज्यादा है, तो आपको डस्ट पार्टिकल्स तो रहता है। दैट एक्चुअली शोज यू दैट जो मोमोज आप खा रहे हो थिएटर में, उसके ऊपर भी वो सब है, जस्ट वहां से प्रोजेक्टर की बीम नहीं जा रही है। Any place where you have a carpet or any house where you have a carpet, you are actually living along with protozoas and microbes. Earlier we used to have, I abolished this thing. This is the best floor that you can have. Carpet से गंदा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा environment are not like foreign countries. जैसे आप US वगैरह में जाओगे, even in Hong Kong and all, you never need to polish your shoes. बारिश हो जो हो, धूल नहीं है ना, तो कोई कचरा, everything is concrete. In our place, after road there is a मिट्टी एरिया, तो आप जूते पहन के सारा दिन घूम के नेक्स्ट डे कैन यू हैव टू पॉलिश योर शूज, और पॉलिश की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बिकॉज इट्स सो क्लीन। तो वहाँ लोग कारपेट्स है, फिर हाई कर्टेन्स, थिक कर्टेन्स लगाते हैं, कुशंस। आप अभी खड़े हो जाओ ना और कुशन में डंडा मारो, ढाम 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 करके, आपको अगर स्नीजिंग की प्रॉब्लम है तो साथ साथ स्नीजिंग होनी शुरू हो जाएगी। जितने ज्यादा बेड, इवन द रजाई which you are taking every day by switching on AC, don't think is very clean. It is having lots of dust. The only thing is that the dust is settled. The dust, but one way good for you is that your immunity is also high. The others will not be that immune. थोड़े में। So this is all about this chapter. तो अगर हम इस चैप्टर को खत्म करने से पहले मैं दोबारा एक बार वही चार्ट बनाता हूं जो मैंने बनाया था। क्या सीखा था बेटा? मैटर। Matter is comprising of what?
pure and impure. Pure substances are classified as elements. आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए. And compounds. While elements can be represented by atoms as well as molecules, compounds can be represented only by molecules. है ना? Compounds are formed by the chemical combination of two or more elements. A chemical combination means a chemical change. There will always be new substances with new products that are formed. Parental properties are no more retained. Energy is either absorbed or energy is either released. So compound form होने पे हम हमेशा form करते हैं क्या? Chemical change. And in a chemical change, you have always new substances and new properties. Then energy will either be absorbed, ABS, or energy will be released. And then we have a third point. Third point is anyway, we have mentioned it, new substances with new properties. Then comes our impure substances. Our impure substances are known as mixtures. Okay, how to differentiate between compound and mixtures? Agar koi puche, a mixture is not a chemical combination. A compound is a chemical combination. Mixtures can be separated. Compounds cannot be separated. A compound will have a fixed melting and boiling point. A mixture will not have a fixed melting and boiling point. Proportion of constituent elements in a compound is always fixed. ये आप लिख सकते हैं. Proportion. You can write down differences between mixtures and compounds. लिख लीजिए एक बार. Mixtures और compounds दोनों को अलग से लिख लीजिए. You can write down. Mixture is a compound is a chemical change. पहला point हो जाएगा chemical change. I'm writing the points out here. The first point is chemical change. Compounds are the result of chemical change. Mixtures are not chemical changes. Next line you write, compound के केस में new substance, new property. ठीक है ना? Mixture के केस में आप क्या लिखोगे? Parental properties are retained. Or you can write properties of constituent are retained. ठीक है? थर्ड वाले पे आप लिखोगे मिक्सचर कंपाउंड के केस में यूनिक बीपी एंड एमपी, यूनिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. जैसे वाटर कहीं से भी आप लेके आओ, वाटर 100 डिग्री पे ही बॉयल होगा. मिक्सचर पे आप क्या लिखेंगे? मिक्सचर्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी. अलग अलग मिक्सचर के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होंगे. टैंग अनन्या ने बनाया तो एक बॉइलिंग पॉइंट, मैंने बनाया तो एक और बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. नंबर 4, कंपाउंड के केस में हम लिखेंगे फिक्स प्रोपोर्शन. व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स प्रोपोर्शन? सर, फिक्स प्रोपोर्शन मींस one molecule of H2O always will have 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen, whereas the mixture is your choice. ऐसे सोचो ना, भेलपुरी, तुम्हें जितनी मिर्ची चाहिए तुमने उतना लगाया, उसको कम चाहिए उसने कम लगाया. ठीक है. Mixtures, they do not have fixed proportion by weight. Compounds cannot be separated. And then 5th point, separation के ऊपर लिख लीजिए. Constituent elements cannot be separated by usual methods of filtration, distillation. Mixtures can be separated. Constituents can be separated in a mixture by filtration, evaporation, distillation. इससे आप separate कर सकते हो. ठीक है. ये था हमारा छोटा सा, ये questions भी आता है, distinguish between mixture and compound. So mixtures can be then classified into 2 heads, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous and heterogeneous. Homogeneous के अंदर में आते हैं solution और आता है alloy. Alloy solids का mixture होता है. Alloy actually is a molten mixture of metals which is allowed to solidify. Alloy की खासियत क्या है? Alloy में you cannot separate out. You cannot separate out the 2
metals which were molten, but both the metals will retain their property. That's why it's an alloy. देखो आप सवाल ऐसे पूछो, सर एलॉय में अगर हमने एक तलवार निकाला, किसका? स्टील का तलवार, उसमें आयरन भी है, कार्बन, सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन दोनों अपना प्रॉपर्टी दिखाता है। अगर वो कंपाउंड होता, दोनों का अपना प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाता। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, ये भी लिख के रखिए, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रास का हिंदी होता है पीतल, कॉपर, ब्रॉन्ज का हिंदी होता है कांसा। पूजा पाठ में ब्रास यूज करते हैं, पीतल के सामग्री। सॉल्यूशंस एंड अलॉय। सॉल्यूशन में हमने क्या क्या चीज पढ़ा? वी ऑल्सो अंडरस्टूड समथिंग कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, ये भी हमें चाहिए। और सॉल्यूशन में हमेशा याद रखिए, डज नॉट स्कैटर, डज नॉट स्कैटर लाइट, ये मेन चीज है। आते हैं हमारे हेट्रोजेनस में, और इसका क्या साइज रहता है? 1 नैनोमीटर। हेट्रोजेनस के दो भाग होते हैं। पहले भाग को हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। ये तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। उल्टा लिख दिया। पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। और एक होता है हमारे पास कोलॉइड, इसमें 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, ये स्कैटर करता है। हाँ, क्योंकि हेट्रोजेनस है, क्योंकि वो लाइट स्कैटर कर देता है ना। होमोजेनस में आने के लिए सारे ये सब, ये ऑल टेस्ट मस्ट गो थ्रू, इसलिए तो बीटीएम नाम दिया ना इसको। ये सब टेस्ट में पास करता है, मेकअप, बातचीत, रहन सहन, उठना बैठना। लेकिन जब कोई बात आती है, हाँ स्नैक्स दीजिए ना कहीं अपना सुराग छोड़ देगा। समझ में आ रहा है ना? स्नैक्स। और गुजरात जाते जाते स्नैक्स बन जाता है स्नेक्स। स्नेक्स खा लियो, स्नेक्स खा लीजिए, स्नेक्स। So this is all about this chapter. We are done with 2 chapters. The next 2 chapters are again very interesting and important from future, what you call, course perspective. That is, अगर आपको element, next chapter में we got a fair bit of idea between element and compound. See, we got some 10-15 minutes left. Okay, if anybody wants to have little bit more, because the more clarity you have here, why I am saying your science books do not talk anything about element or compound till date, whereas your counterparts in ICSE, they know what is NaNO3, Na2NO3 from grade 7. अगर आप उसके grade 7 की टेक्स्ट बुक निकालेंगे तो उसको ये सब चीज क्लियर है, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, ये तो इसमें क्लैरिटी बहुत जरूरी है, व्हाट इज एलिमेंट एंड व्हाट इज कंपाउंड, बिकॉज द नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यू विल बी गेटिंग इनसाइड दिस। जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं होता है तब तक आप जान नहीं पाएंगे। आर यू रिवाइजिंग द चैप्टर अगेन? आई, हाँ, तब पूछना नहीं चाहिए मुझे, फिर भी मैंने पूछ लिया। सो इस चैप्टर से आपके कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैन कम। ठीक है, ये सोच रहा है किसी भी तरह बंद कर दे और सर बोल दे बस चले जाओ, सर चले जाएंगे, है ना? राइट।